Hello students, myself Dr. Jayanto Bhattacharjee and welcome to my YouTube channel. We are going to start Economics class 10 chapter 3 that is money and credit. पहला जो क्वेश्चन आता है मनी है क्या। देखो ये मनी जो है ये वर्ल्ड में सबसे बेहतर चीज़ है और वर्ल्ड में सबसे घटिया चीज़ है। जो आदमी जैसे यूज करे उसके हिसाब से इसको पता चलता है। देखो पहला जो है व्हाट इज मनी। फर्स्ट थिंग इज द चैप्टर स्टार्ट्स विथ टू वर्ड, वन इज मनी, नेक्स्ट इज क्रेडिट। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दुकान में पैसा दिया, कुछ सामान खरीद के ले आया, लेकिन डॉक्टर के पास गए, उसका विजिट दे दिया, दैट मीन्स यू आर परचेजिंग सर्विसेज। So, money only we can purchase not only goods but also we can purchase services. Next thing is credit. What is credit? Credit means with the expectation of future repayment, that is called credit. So, our chapter comprised of two very words, one is money, another is credit. Clear? Now, money acts as a medium of exchange. देखो एंसेंट टाइम में क्या होता था, एंसेंट टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या है, एक आदमी ए और आदमी बी, ए बी को कुछ क्रॉप्स दे दिया, इसके बदले में बी ए को मतलब कुछ वेजिटेबल्स दे दिया। इसी तरह चलता था, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक बंदे दूसरे बंदे को कुछ गुड्स दे दिया, उसके बदले में दूसरा बंदा पहला वाला को और कुछ गुड्स दे दिया। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है। मान लो एक बंदे के पास एक काऊ है, लेकिन उसको चाहिए राइस, व्हीट, शुगर, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हाउ कैन ही डिस्ट्रीब्यूट दिस काऊ? This was the prime problem. So this problem has plenty of limitations during ancient period, yet people had to follow these things. In the medieval period, we observed that silver coin, gold coin, grains, cattle, all these used for exchanging goods or services. But in modern time, we use money. In modern time, we use money as a currency note and coin. But the question arises, why should we follow, why should we obey this currency? Because this currency is authorized by Reserve Bank of India, RBI, which is the representative of the central government. Next thing is demand deposit with bank, or it is also called check. These are the two ways of using money in modern time. Apart from these, you can find plastic money. What is plastic money? That means credit card, याद आ गया, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो ऐसा कुछ कार्ड्स है जिसके हिसाब से हम लोग मनी यूज कर सकते हैं। नाउ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखो इसमें बैंक जो होता है दे कैन फुलफिल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो अगर बैंक पे हम लोग ना जाए, सोसाइटी में रहे, तो सोसाइटी में कैसा होता है, देखो एक जो शू मैन्युफैक्चरर है वो एक शू बना के अगर सेल कर देगा, सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से चावल, दावल और मतलब मस्टर्ड ऑयल, whatever the things he needs, he can purchase. Similarly, a man who is selling wheat, after selling these things, whatever the money he is getting, he can purchase as per his requirement. So in that way, money acts as a medium of exchange in our society. Now, in the ancient time, as we told you, metallic coins were there, silver coin, gold coin, copper coin, all these were very much familiar during that time. But now we use modern form of currency,
that is paper note and coins. Just a few minutes back I have already told you that it is authorized by the Reserve Bank of India, who has the sole authority to issue the notes on behalf of the central government. As central government आरबीआई को पावर दे रहा है कि तुम लोग जो है जितना चाहिए मनी को प्रिंट करो, मार्केट में निकाल दो, बिल्कुल इट इज टोटली अपॉन यू एंड यू कैन इजीली कंट्रोल एज पर योर कन्वीनियंस, प्रोवाइडेड द पीपल शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आरबीआई ने बोला ठीक है चलो हम लोग कर देंगे, उसके हिसाब से ये लोग कर रहा है ऐसा ही कुछ। अब देखो बैंक में हम लोग पैसे डिपॉजिट करता है, बट why we are depositing in the bank, why not in other places? Because there are some advantages for depositing the money in the bank. What are the advantage? देखो it remains safe, कुछ थेफ्ट नहीं होगा। उसके आगे बैंक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देता है हम लोगों को, और हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कितना मनी हमारा था और कितना ऊपर चले गए, मतलब विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट थिंग, हमें कोई वरीज नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। दैट्स वाई वी ऑफन गो टू बैंक एंड डिपोजिट आवर मनी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट थिंग इज डिमांड डिपोजिट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेक। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज चेक। देखो चेक है क्या? चेक जो है एक पेपर, एक बैंक का एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम the person's account to the person in whose name the check has been issued। मतलब देखो यहाँ पे दो बंदा है A और B। बंदा A B को एक चेक दे दिया कि देखो तुम्हारा पैसा का जरूरत है, मैं तुमको एक चेक दे रहा हूँ, बैंक में ले जाओ, पैसा तुम्हें दे देंगे। बैंक कहाँ से देगा? ए का जो खाता है यहां से निकाल के बी को दे देंगे, बैंक थोड़ी अपने खुद से देगा। मतलब एक आदमी जिसका अकाउंट है बैंक में, उसी खाते से पैसा दे देंगे एज पर इंस्ट्रक्शन टू द पर्सन एंड द स्पेसिफिक अमाउंट। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेक। इंडिया में बहुत सारा चेक्स चलता है। कैसा कैसा? देखो ये पे देखो, ये जो चेक का एक पिक्चर मैंने दिया, इसमें बहुत कुछ पॉइंट्स रहता है। क्या क्या? फर्स्ट जो पॉइंट है, किसके नाम पे ये चेक दे रहा है हम लोग। फर्स्ट जो है पे, किसको पे कर रहा है, कब दे रहा है हम लोग, डेट। नेक्स्ट थिंग इस कितना अमाउंट दे रहा है, ये यहाँ पे ही लिखना होगा। फिर कौन सी अकाउंट से इसको डेबिट करना है, कौन सी बैंक से इसको डेबिट करना है, फिर चेक नंबर क्या है और कौन दे रहा है, एक उसका सिग्नेचर। ऑल दिस थिंग्स इफ इट इज करेक्ट देन बैंक कैन एंटरटेन दिस चेक। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स आर देयर। फर्स्ट इज बीआरआर चेक। हमें पैसा का जरूरत है, मैंने एक चेक लिख के एक आदमी को दे दिया, चले जाओ बैंक में चले जाओ, मेरे खाते से ऐसा कुछ पैसा ले लो और वहाँ आके हमको दे दो। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर चेक। मैंने एक आदमी को एक ऑर्डर चेक इशू कर दिया, प्रोवाइडेड इफ द बैंक सेटिस्फाइज देन यू कैन गेट द मनी। नेक्स्ट इज क्रॉस्ड चेक। दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ क्रॉस एंड राइटिंग AC पेई, मतलब ऐसा हाथ में पैसा नहीं डालेंगे। जिसके खाते में, जिसका नाम पे ये लिखा है चेक, उसके खाते में इसको एंट्री कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज ओपन चेक। मतलब एक बंदे का नाम पे मैंने चेक दे दिया, वो अगर बैंक में जाए पीछे ऐसा उसका सिग्नेचर कर देंगे, बैंक अपने आप पैसा दे देंगे। दिस इज कॉल्ड ओपन चेक। नेक्स्ट इज पोस्ट डेटेड चेक। मतलब कुछ दिन बाद ये चेक तुम लोग ले सकते हो, लेकिन मेरे पास बैंक में खाते में इतना पैसा नहीं है तो ये चेक कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ऐसे बहुत सारा चेक्स है। स्लेट चेक है, ट्रैवलर्स चेक है, सेल्फ चेक है। सेल्फ चेक मतलब मैंने खुद का पैसा तो निकालना है, मैंने इसको सिग्नेचर करके बैंक में दे दिया, बैंक हमें पैसा दे देंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ चेक्स वी ऑफन यूज। तुम लोग जब अबव 18 हो जाओगे, बैंक में तुम लोग ऐसा कुछ चेक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो व्हाई वी आर यूजिंग दिस चेक्स, बिकॉज
चेक इज वेरी मच सेफ इन नेचर, सेफ एंड सिक्योर एंड कन्वीनियंट पेमेंट। क्योंकि एक आदमी के नाम में मैंने चेक डाल दिया है, आदमी के खाते में पैसे चले गए, ये कभी रिफ्यूज नहीं कर सकेंगे कि नहीं तुम तो पैसा नहीं दिया, क्योंकि पूरा डिटेल जो है कॉपी में मार्क्ड है, कब दिया, कितना पैसा दिया, चेक नंबर क्या है, कहाँ से दिया, सब कुछ वहाँ पे क्लियर रहेगा। सो चेक कैन बी यूज्ड, चेक में बी इशूड अगेंस्ट अ करेंट अकाउंट और अ सेविंग्स अकाउंट, दोनों अकाउंट से चेक हम लोग इशू कर सकते हैं विदाउट एनी फियर और लॉस और थ्रेफ्ट ऑफ और मिनिमाइज्ड। ये कम नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, कुछ का ऐसा कुछ फियर नहीं है, मतलब चोरी होने का कुछ डर नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिट। देखो चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था दो वर्ड्स है, एक तो मनी, दूसरा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन। सो व्हाट इज लोन? देखो लोन, व्हाट डू यू मीन बाय लोन? अ प्रॉपर्टी और मनी और अदर मटेरियल that is given to another party in exchange for future repayment, mind it, in exchange for future repayment। क्या क्या देना होगा? जितना वैल्यू लिया था उसका, उसके प्लस कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा। तो हम लोग लोन और क्रेडिट क्यों लेते हैं? इसका कुछ बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट है? देखो इमरजेंसी एक्सपेंसेस जितना है हम लोग इसके लिए लोन ले सकते हैं। फिर कंसोलिडेट हाई इंटरेस्ट डेट, रूरल मनी लेंडर से अगर ऐसा कुछ पैसा लेंगे तो बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। अगर हम लोग बैंक से लोन ले तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है। नेक्स्ट थिंग इज हमारे कोई रिश्तेदार का शादी लग गया या तो फिर कहीं पे घूमने जाना है, पैसे का ज़रूरत है, बैंक से ले लेंगे। फिर प्रेडिक्टेबल पेमेंट शेड्यूल, दे हैव प्रेडिक्टेबल पेमेंट शेड्यूल। ऐसा कुछ नहीं हम घूम के आए, बैंक घर में आके खड़ा हो गया कि भाई पैसा दो, नहीं, ऐसा नहीं। जब हम लोग पैसे लेंगे उस टाइम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा कि इतने मंथ में ऐसा करके से 5000 पर मंथ तुम्हें देना होगा इनटू 12 मंथ, ऐसा करके तुम्हें रिटर्न करना है। सो प्रेडिक्टेबल payment schedule is made. Next, personal loans are flexible in their uses. Personal loan कोई भी ले सकते हैं और अपने तरफ अपने मर्जी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाउ डज बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड्स। बैंक क्या करता है? देखो एक एग्जाम्पल देते हैं तुमको। एक बंदा मिस्टर एक्स, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इतना सारा पैसा क्या करेगा? चलो हम लोग बैंक में डाल देते हैं। और दूसरा बंदा मिस्टर वाई, इसका पैसे का ज़रूरत है, ये जाके बैंक ने बोला कि देखो भाई हमें कुछ पैसा चाहिए, चलो ठीक है। बैंक क्या करेगा? ये जो एक्स का जो पैसा था इसमें से कुछ पैसा इनको दे देंगे। बदले में क्या होगा? ये मिस्टर एक्स को बैंक ने बोला कि तुम्हें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पैसा रखने के लिए, और मिस्टर वाई को बताया तुम्हें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के जितना होगा ऐसा ही तुम्हें देना होगा। सो द रिमेनिंग 3%, दीज आर द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, these are the profit of the bank because bank is a business organization and they prefer to get more profit. Not only that, Mr. Y जो लोन चाहते हैं उनको बैंक बोलेगे कुछ कोलैटरल्स यहाँ पे दे दो। कोलैटरल मतलब गारंटी, इफ यू फेल टू रिपे द अमाउंट वी कैन सेल दिस कोलैटरल्स टू अपडेट आवर रिपेमेंट ऑफ लोन। इसमें क्या है? लैंड हो सकता है, कुछ बिल्डिंग हो सकता है, या तो फिर व्हीकल्स हो सकता है, लाइफ स्टॉक हो सकता है, बैंक डिपॉजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसको सेल करके हम लोग पैसा निकाल सकते हैं वही होगा हमारा कोलैटरल।
क्योंकि अगर कोई आदमी कोई बंदा भाग गया यहाँ से तो बैंक बोलेगा चलो बाय बाय टाटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा पैसा मेरे पास है। इसीलिए बैंक चाहते हैं कि तुमको कुछ कोलैटरल्स वहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्रेडिट है एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहता है क्रेडिट लेने के लिए। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन के जो पहला आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बैंक तुम्हें पहले बता देगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना देगा बैंक पहले बता देगा। कोलैटरल डिटेल तुम क्या क्या दे रहे हो बैंक लिख के दे देगा। और ड्यूरेशन ऑफ रिपेमेंट कितने दिन में तुम पैसे को वापस करोगे उसके हिसाब बैंक फिक्स्ड कर देता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 इश्यूज बैंक क्रेडिट दे देता है। ये देखो प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड पापा के पैकेट जेब में रहता है या मम्मी के जेब में रहता है, ऐसा कुछ। नाउ द क्रेडिट जो देता है 2 सेक्टर है, एक तो फॉर्मल सेक्टर और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में क्या है, या तो फिर बैंक या तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड इनफॉर्मल सेक्टर कोई भी रूरल मनी लेंडर हो सकता है, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी, मतलब जहां से पैसा हमें मिलेगा वही हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, प्रोवाइडेड ही रिक्वायर्स नो पेपर्स। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक और कोऑपरेटिव, एंड इनफॉर्मल सेक्टर मतलब लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, relatives, etc., etc. So these are the 2 ways by which we can get loan. Next thing is entire loan procedure, entire banking activities is directly monitoring by the RBI or Reserve Bank of India. Now the question arises, why RBI is maintaining and how they are monitoring these things? देखो ये सबको पता है बैंक जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रॉफिट मोटिव, बट आरबीआई जस्ट लुकिंग आफ्टर देयर एक्टिविटीज whether they are only carrying out the profit making activities or they are doing some welfare activities. देखो स्टूडेंट का जो पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, या तो फिर एग्रीकल्चरिस्ट जो है फार्मर उनको कुछ पैसा चाहिए खेती करने के लिए, ऑल दिस पर्पस द बैंक नीड्स टू चार्ज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट तुम्हें घूमने जाना है या तो फिर कार खरीदना है, बैंक कैन चार्ज मोर इंटरेस्ट। बिसाइड्स आरबीआई ऑल्सो मॉनिटर्स whether the bank is maintaining proper cash balance or not. कैश बैलेंस क्या है, देखो बैंक में जितना सारा पैसा है डिपॉजिट किया है आदमी ने, उनका 15% कैश डिपॉजिट बैंक को रखना ही होगा। क्योंकि अगर पूरा का पूरा लोन में दे दिया, अगर जब कोई आदमी आएगा मेरा पैसा है हमको आज विड्रॉ करना है, तो बैंक क्या बोलेगा, नहीं तुम्हारा पैसा लोन में दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए टोटल अवेलेबल फंड्स ऑफ द बैंक they need to secure minimum 15% cash balance, so that whenever the depositor is coming to the bank or branches they can easily withdraw their money. ठीक है, now all these activities are looked after by RBI, Reserve Bank of India. This is I am talking about formal sector. But what about informal sector? There is no organization like RBI, no one is looking after the activities, so unfair means is going on and they are exploiting as per their desire. That is why we need to expand as much as possible banks, cooperatives or government run financial organizations. Now the thing is that what are the difference between formal and informal sectors? Here it is written, just distinguish between
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फॉर्मल सेक्टर कहाँ कहाँ पे, मैंने अभी बताया तुमको कि बैंक और कोऑपरेटिव जो है ये फॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल लिखा होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन है, पहला जो होता है गांव में रूरल मनी लेंडर आता है, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा। नेक्स्ट थिंग इज आरबीआई जो है, आरबीआई all the activities are monitoring, whatever the activities of banks and cooperatives are doing, RBI is monitoring, but there is no such organization to monitor the activities or supervise the functioning of the informal sectors. Next thing is generally charges lower rate of interest, bank cooperative they charges lower rate of interest, कहाँ से, in compared to that of rural money lenders. Next thing is bank definitely will ask you to deposit collateral and documentation is required, but in case of informal sector no documentation is needed. Next thing is bank also ensures social welfare activities, but they don't have any सोशल वेलफेयर मोटिव, क्योंकि इन लोगों को पैसा चाहिए सबसे ज़्यादा, कहीं से भी मतलब एक आदमी कितना पुअर है उसका कुछ लेना देना नहीं है, उनको पैसा चाहिए कहाँ से, ऐसा। देखो ये जो है नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाई शुड वी एक्सपेंड मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। देखो if we can expand formal sectors, then we can prevent, we can save the farmers from the exploitation of rural money lender. Next thing is formal sector charges lower rate of interest, they are not supposed to go in the debt trap. बैंक में गांव में क्या होता है, अगर एक आदमी लोन ले लिया उस लोन का एक डेट ट्रैप बन गया, यहाँ से निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। सो इफ दे गो टू बैंक देन दे आर नॉट सपोज टू ट्रैप्ड इन द सर्कल। नेक्स्ट थिंग इज इट प्रोवाइड्स चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, बैंक देता है, लेकिन गांव में रूरल मनी लेंडर ऐसा कुछ नहीं देता। नेक्स्ट थिंग इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट लाइक मनी लेंडर। नेक्स्ट थिंग इज टू रिड्यूस द हाई रिस्क एसोसिएटेड विथ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, गांव में जो पैसा दिया उनका मर्जी से सब कुछ चलता है, कुछ भी रिटेन कंडीशन नहीं है, रिटेन ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं गांव में, उनका मुंह बोले जो आता है ऐसा ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू हैव or to expand maximum possible formal sectors of India, formal sector of loan in India, so that we can ensure the farmer that you are not supposed to exploit by anyone. देखो गांव में दिखाई देता है हर एक, मतलब यह जो एक पिक्चर है, देखो इस पिक्चर में क्या आता है, ये ब्लू वाला जो है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर और पर्पल जो है ये लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। देखो पोर हाउस होल्ड, यहाँ पे पोर हाउस होल्ड 85% पीपल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है और 15% जो है फॉर्मल सेक्टर बैंक कोऑपरेटिव से लेता है। और जो हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट, जिसका कुछ पैसा है, ये उसमें दिखाई देता है कि ऑलमोस्ट 50% रूरल मनी लेंडर से लेता है और बैंक से लेता है। और जो वेल ऑफ हाउस होल्ड यहाँ पे दिखाई देता है 72% पीपल बैंक कोऑपरेटिव से लोन लेता है और 28% फ्रेंड रिलेटिव इससे लेता है। और जो रिच हाउस होल्ड है
उसमें दिखाई देता है 90% जो पीपल है वो बैंक कोऑपरेटिव से लोन लेता है, 10% पीपल जो है फ्रेंड रिलेटिव से ऐसा कुछ लेता है। सो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इज एसेंशियल so that these 85% people can be prevented. Next question is self-help group. This is the most vital and talked about topic of nowadays. What is self-help group? देखो, this concept primarily came up to organize the women, particularly rural areas or backward sections, so that they can address their common problem and they have their characteristics. So first जो है, what are the advantage of this self help group? Why we are making self help group? Because the first thing is they can prepare themselves, they can develop themselves in such a way so that they can financially independent हो सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं होगा। Next thing is they can borrow loan without collateral. How it is possible? देखो, मान लो एक ग्रुप, गांव में ग्रुप बन गया, एक ग्रुप में 20 वोमेन है, ये 20 वोमेन सोचा कि हर एक वीक में हम लोग 100 रुपीज जमा करेंगे, इसमें 2000 रुपीज आ गया एक हफ्ते में। तो इसमें 20 आदमी के अंदर एक बंदा ने बोला देखो हमें पैसे का जरूरत है, मैं इस वीक का 2000 रुपीज ले लिया, बदले में 2 महीने बाद तुम्हें 2100 रुपीज लेंगे। इसमें क्या हुआ, ये जो 100 इंटरेस्ट आया ये 29 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, along with those who are taking loan, he will also get the benefit of this 100 rupees. Next thing is the loan are provided lower rate of interest. Next thing is SHG build a block organization of the rural poor people. They can form a organization at the block level. So these are the prime advantages for the formation of self-help group. Now the question is, what is the objective for the formation of this self help group? क्यों बना? देखो, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये अराउंड 15 to 20 वुमेन इकट्ठे हुआ, एक स्मॉल ग्रुप बना लिया, फिर ये लोग कुछ लोन ले लिया बैंक से, ऐसा कुछ भी उस लोन से ये लोग क्या करेंगे, छोटा मोटा बिजनेस जो है या तो फिर प्रोडक्शन कुछ फैक्ट्रीज बना लेंगे, इससे जो प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट से इन लोगों का बेनिफिट होगा फर्स्ट। सेकेंड थिंग, दे कैन डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इश्यूज लाइक हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आफ्टर बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, they can hold regular meeting among the group member and they can get a platform to discuss variety of issues, and in that way they can not only solve their problem, at the same time they become self sufficient and in that way they can monitor the activities of other societies, along with they can properly channelize their words or their children's. So this is the prime objective for the formation of self-help group, and these are also the importance of this self-help group. So this is the main themes or one short discussion of this chapter. देखो, इसमें पहले हम लोग जो डिस्कस किया, मनी क्या है, मनी कहाँ से आता है, एंशिएंट सोसाइटी में मनी कैसे चलता था, फिर मिडाइवल में क्या आया, फिर मॉडर्न करेंसी कैसे आया, हु इश्यूज द मनी, व्हाई दे आर इशूइंग, व्हाई वी आर ओबेइंग दिस अथॉरिटी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज प्लास्टिक मनी, ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ ये जो लोन एक्टिविटीज है, क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट, उसके आगे हम लोग देखा चेक, मनी डिपॉजिट, चेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, चेक का क्या क्या हिस्सा है, तुमको कुछ दिन बाद इसका जरूरत होगा,
सो इसीलिए क्लास 10th का स्टूडेंट को ये सब दे दिया. नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक. आफ्टर दैट व्हाई शुड वी एक्सपेंड formal sources of credit in rural areas. Next thing is self-help group. What is self-help group, why it is formed and how it is formed, what are the objectives, all these things we have already discussed. So this is the basic discussion of this chapter. देखो चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर करना और कमेंट करके जनाना ये क्लास तुम्हें कैसा लगा, गुड हो या बैड हो कोई भी लिख देना और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना. थोड़ी देर में हम लोग एक छोटा ब्रीफ जो है क्लासेस लेके आएंगे, 5 to 7 मिनट्स डिस्कशन होगा इसी चैप्टर का, ताकि एग्जाम के पहले या तो फिर स्कूल में क्लास की पहले अगर 5 to 7 मिनट इसको देख के जाओ तो पूरा का पूरा रटा हो जाएगा. सो last but not the least, I must say subscribe it, share it and like it. Thank you.